بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے لاہور کو آلودہ کر دیا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ صبح کے اوقات میں آلودگی کی شرح 300 سے بھی تجاوز کر دی ہے، بلکہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ راوی روڈ 736 ایف سی کالج کے اطراف آلودگی کی شرح 629 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کیا وجوہات مزید سامنے آ رہی ہیں، سمرا فاطمہ سے جان لیں گے۔ فضا ابھی بھی مضر صحت ہے اور شہری جو ہے اس فضا کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب گلا خراب، نزلہ، کھانسی، آنکھوں میں جلن اور چبھن ہونا عام سی بات ہو گئی ہے، اور اگر اسی طرح سے صورتحال رہی تو شہری پھیپھڑوں کی بیماری، گردوں کے امراض اور اسی کے ساتھ ساتھ جلدی امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے تو اس وقت بھی لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 242 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو تاحال کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر فضائی آلودگی کی شرح کم نہیں ہو پائی، اور ابھی بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 700 سے بھی زیادہ ہے۔ راوی روڈ کے اطراف جو ہے اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 736 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایف سی کالج کے اطراف میں 629 AQI اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں 533، اسی طرح سے سید مراتب علی روڈ کے اطراف میں 441 جو ہے وہ AQI اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹاؤن شپ کے اطراف میں 452، اسی طرح سے برکی روڈ کے اطراف میں 373 ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح اس وقت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے بھی آلودہ ہواؤں نے شہر لاہور کا رخ کیا ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے فضا جو ہے وہ دن بہ دن آلودہ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ حکومت نے بھی فصلوں کی باقیات، گتا، ربڑ، پلاسٹک پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آلودہ ذرات پیدا ہوتے ہیں جو کہ فضا کو مزید مضر صحت بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں پھر سے AQI متاثر ہو سکتا ہے اور فضائی آلودگی پھر سے بڑھ سکتی ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ فضا دھندلائی ہے اور حد نگاہ میں جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ایسے میں شہریوں کو احتیاط برتنے کا کہا جا رہا ہے کہ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، بیرونی سرگرمیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، تو شہری جو ہے وہ احتیاط کو یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال ہر صورت کریں اور دیگر احتیاطی تدابیر بھی اپنائے رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ، تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے لاہور اس وقت آلودہ ہو چکا ہے۔ اسموک تدارک کے لیے ٹریفک پولیس کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کمرشل گاڑیوں کا شہر میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ رواں ماہ 13,000 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ مختلف مقامات پر اسپیشل ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ مزید جان لیں گے عابد چودھری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ کے ساتھ ساتھ شہر میں سموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں جہاں دیگر ادارے سموگ کے پیش نظر کارروائیاں کریں تو ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی دھواں چھوڑنے والی اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ CTO اطہر وحید کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ جو کمرشل گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا، اور کارروائیاں کے لیے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل ٹیمیں تعینات کی جو کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ CTO اطہر وحید کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رواں ماہ کے دوران تقریباً 13,000 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں، ان کو مختلف ٹریفک سیکٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ تھانوں میں بند کروایا گیا۔ دوسری جانب بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ جو گاڑیاں شہر کے داخلی خارجی راستوں سے داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں یا شہر سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گاڑیوں کو بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے بند کروایا جا رہا ہے۔ تقریباً 18,000 سے زائد ایسی گاڑیاں ہیں جن کو بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ ہونے پر مختلف تھانوں اور ٹریفک سیکٹر میں بند کروا دیا گیا۔ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ جو بلڈنگ مٹیریل کا سامان لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالیاں، جن میں مٹی لے جانے والی، ریت لے جانے والی یا اینٹیں لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالیاں جن کو ڈھانپا نہیں جاتا، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تقریباً 4,000 سے زائد ایسی ٹریکٹر ٹرالیاں جن کو ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو مختلف تھانوں اور ٹریفک سیکٹرز میں بند کروا دیا گیا۔ تو شہری سٹی کے حوالے سے کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے دن رات دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہیں، تو ایسے میں شہری جو ہیں وہ بھی ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں گے۔ ملک بھر کے 188 سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ، ٹاؤن شپ، گلبرگ ماڈل ٹاؤن سمیت دیگر جگہوں پر امتحان۔ 1,40,000 طلباء کی داخلہ ٹیسٹ میں شرکت کی گئی ہے۔ امتحانی سینٹرز میں تاخیر سے پہنچنے والی طالبات کو داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ داخلے کی اجازت نہ ملنے پر طالبات آبدیدہ ہو گئی۔ طالبات کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ ہم 9 بجے سینٹرز پر پہنچ گئی تھی مگر اندر نہیں جانے دیا گیا، طالبات کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 10 بجے ٹیسٹ شروع ہونا تھا، 1 گھنٹہ پہلے ہی داخلہ بند کر دیا گیا۔
हमारा साल ज़ाया हो जाएगा, अगले साल पॉलिसी मुख्तलिफ होगी, हमारा क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तलहा अशरफ मौजूद है, जो कि टेस्ट सेंटर के बाहर ही मौजूद है। इस वक्त की सूरत हाल उनसे जान लेंगे। तलहा, ये बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? क्या इन तालिबात को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है? जी बिल्कुल, अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करूं तो इस वक्त मैं टाउनशिप जो कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जो सेंटर बनाया गया है, इम्तिहानी सेंटर जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज के दाखिले के लिए टेस्ट MD-CAT का शुरू किया गया था, यहाँ उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो जितनी बच्चियाँ बाहर खड़ी थीं जिनको रोका गया था, उनको यहाँ से वापस घरों की तरफ भेज दिया गया है। अभी यहाँ पर कोई भी तालिबात मौजूद नहीं है जो अंदर जाना हो। जितनी भी लेट हुई थी या किसी का मसला बना था, उनको वापस घरों की तरफ भेज दिया गया। अगर मैं इसकी डिटेल में बताऊं तो 1,40,000 कुल बच्चे थे जिनको पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ सेंटर्स में जो कि पेपर्स कंडक्ट करवाए जा रहे थे। और यहाँ की सूरत हाल अगर बताऊँ तो बच्चियों को रोका गया, जबकि बच्चियों की जानिब से ये भी बताया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से 9 बजे तक था, जबकि जो टेस्ट है वो 10 बजे ही शुरू होना था। 9 बजे यहाँ पर पहुँचने वाली जो बच्चियाँ थी, तकरीबन जिनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब थी, उनको अंदर जाने से रोका गया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि टेस्ट शुरू होने से 1 घंटा पहले आने पर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद जो ख़वातीन थी, जो बच्चियाँ थी, तालिबात थी, उन्हें रोता भी देखा गया। और उनकी जानिब से इंकशाफात किए जा रहे हैं कि आने वाले साल में, क्योंकि इनका पूरा साल एक ज़ाया हो रहा है और आने वाले साल में पॉलिसी तब्दील होगी, जिसकी वजह से इनके नंबर्स पर जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है, इनका जो दाखिला है, उसमें भी खलल पड़ेगा। उनकी जानिब से भी अपील की गई है कि CM पंजाब इस पर ज़ाती तौर पर नोटिस लें और दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए ये जो MD-CAT का टेस्ट है। और जो बच्चियाँ लेट हुई या जिनका इशू था, उनको दोबारा से एक मौका दिया जाए ताकि वो MD-CAT के लिए क्वालिफाई करें और डॉक्टर बनने का जो अपना ख्वाब है उसको पूरा करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलहा अशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल पहुंचे थे जाती उम्रा में, जहां उन्होंने सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। आपके बताएं कि इस मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर जब वो तबादला ख्याल किया गया है, जबकि खास तौर पर मईशत की बेहतरी और सफारती महाज पर कामयाबियों की तहसीन की है सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और इस पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को सराहा है। आपके बताएं कि इस मुलाकात में जो है वो चूंकि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और 29 अक्टूबर तक का ये दौरा होगा। 27 से 29 3 रोजा ये दौरा है। इस हवाले से भी रहनुमाई जो है वो ली गई है सरबराह मुस्लिम लीग नून से। और चूंकि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो रहे हैं, तो वहाँ पर जब रियाद में ना सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से मुलाकातें होंगी, जबकि कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा रही है, जिस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो शिरकत करेंगे। तो इन अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से गाइडलाइंस जो है वो ली गई हैं सरबराह मुस्लिम लीग नून से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। लेस्को में मीटर साज कंपनियों के अफसरान और मुलाजमीन का बिजली चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। लेस्को ने इंजीनियरिंग टाउन में मीटर तब्दील करने वाले मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये क्या मामला है, इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। शाहिद नदीम सिपरा से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर साज कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन का बिजली चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर लेस्को इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीजन के SDO की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि लेस्को इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीजन की टीम मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन इस दौरान
दो अफराद को एक मीटर तब्दील करते हुए देखा गया। जब उनसे इस बात पर दरियाफ्त किया गया कि वो मीटर क्यों तब्दील कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि वो मीटर साज कंपनी के मुलाजिम हैं और ये 3 फेज मीटर उनके सीनियर मैनेजर की जानिब से हदायत मिलने के बाद तब्दील किया जा रहा है। जब मज़ीद इस बात की वहाँ मौके पर इंक्वायरी की गई तो ये बात सामने आई कि जो मीटर साज कंपनी है उसने एक ही नंबर का एक और मीटर बनाया है जो सारिफ को दिया जा रहा है और उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। जिसके बाद जो सीनियर मैनेजर जिसके हुक्म पर यह मीटर तब्दील किया जा रहा था उसको मौके पर बुलाया गया और पुलिस की मदद से तीनों मुल्ज़मान को हिरासत में लेने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमे में यह कहा गया है कि एक ही नंबर पर दूसरा जो मीटर लगाया जा रहा था ये बिजली चोरी करने के मुतरादिफ है, इसलिए बिजली चोरी का मुकदमा उन पर दर्ज करवाया जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी करवा दिया गया है। ये वादे कर दूं कि नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को इस बात की जिम्मेदार है कि अगर किसी सारिफ का मीटर ख़राब होता है तो वो खुद तब्दील करेगी। मीटर साज कंपनी बराह रास्त उसको तब्दील नहीं कर सकती और इस पर जनवरी 2025 में इसी कंपनी को और एक और कंपनी को भी मरासला भिजवाया गया था। उस वक्त भी इस बात की निशानदेही हुई थी कि कंपनीज के मुलाजमीन बराह रास्त मीटर तब्दील कर रहे हैं। तो अब यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद एक ऑफिसर समेत मुल्ज़मान हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद नदीम सिप्रा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का एक्शन, पीटीआई दौरे हुकूमत की माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का आगाज हो चुका है। पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, बताइएगा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में इन दिनों जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, खासतौर पर माली साल 2022 और 2021 की इन रिपोर्ट्स पर जो है वो जब जायजा लिया गया तो 25 ऐसे केसेस सामने आए जिसमें साबका दौरे हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उसमें माली बेज़ाब्तियां सामने आई। आपको बताएं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल चौधरी ने बाकायदा ना सिर्फ नोटिस दिया मामलात का, पैराज को निपटाने के हवाले से 25 रोज की मोहलत महकमा सेहत को दी और बाकायदा सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है कि हर सूरत में अगली जो मीटिंग होगी उसमें तमाम तर जो ऑडिट पैराज है उनसे मुतल्लिक या तो जस्टिफिकेशन दी जाए या फिर जो है वो इस हवाले से सजा के हवाले से जो जिम्मेदारान होंगे माली बाज़ाब्तियों के उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपके बताएं कि इस हवाले से उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि बड़ी बेदर्दी से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है और वो इसमें खास तौर पर जो प्रोक्योरमेंट की गई है हेल्थ अथॉरिटीज की जानिब से उसमें रिकॉर्ड कहीं पर नहीं मिला और कहीं पर जो है वो तमाम तर जो कागजात थे उनको जो जाली दस्तावेजात भी जो है वो फराहम की गई हैं, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाकायदा अब इस मामले को सेक्रेटरी सेहत को अरसाल किया और इस हवाले से तायुन करने का पाबंद भी किया। अब फर्दर जो प्रॉबिंग होगी उसमें जिम्मेदारों का ना सिर्फ तायुन किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मिलियंस ऑफ रुपीज हैं जो अद्वियात की खरीदारी की मद में और फर्नीचर की खरीदारी की मद में खुदबुद की गई जिसमें और ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की परचून मार्केट में सस्ती चीनी नायाब हो चुकी है। शहरी महंगे दामों नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर है। ओपन मार्केट में चीनी 210 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों को किन मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, अबू बकर शेख से जान लेंगे, बताइएगा। शहर की परचून मार्केट में आज भी शहरियों को सस्ते दामों चीनी दस्तयाब नहीं है। लाहौर के बासी महंगी तरीन चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से 177 रुपये जो चीनी का निर्ख मुकर्रर किया गया है ये किसी भी जगह दस्तयाब नहीं है। कुछ बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यहाँ पे जो सरकारी जो रेट 177 रुपये फिक्स किया गया है वहाँ पे चीनी दस्तयाब है। ओपन मार्केट के अंदर अगर चीनी के रेट की बात की जाए तो किसी जगह 200, 205 या 210 रुपये के ऊपर फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर चीनी सार्फिन को मिल रही है। अगर बात की जाए दुकानदारों की तो उनका ये मौक़िफ़ है
کہ انہیں چینی جو گھر کاسٹ کرتی ہے وہ تقریباً 190 روپے سے لے کے 195 روپے کاسٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ چینی 200 یا 210 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ریٹ 177 روپے فکس کیا گیا ہے وہ اس ریٹ پر چینی کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ایک عام شہری ہیں، لاہور کے باسی ہیں، انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی تمام تر ایفرٹس کے باوجود، حکومت کی تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود لاہور شہر کے اندر جو چینی سرکاری ریٹ پر آج بھی دستیاب نہیں ہے۔ تمام باسیوں نے لاہور کے مطالبہ کیا ہے جو چینی جی ٹھیک ہے ابوبکر شیخ، بہت شکریہ۔ ٹماٹر کی قیمت سرکاری ریٹ نامے کے مطابق نہیں ہو سکی اور اس کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں، ارباز خان سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ لال سبزی ٹماٹر جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ہانڈی کا ایک اہم جزو ہوتا ہے، کئی دنوں سے شہر کے اندر نایاب دکھائی دے رہی تھی۔ سرکاری طور پر اس کا ریٹ تو 175 روپے تھا، مگر گزشتہ 2 ہفتوں سے قلت کے باعث اس کی قیمت 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی تھی، جس کی وجہ سے اس لال ٹماٹر کی قیمت سن کر شہری بھی لال پیلے ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اب کچھ جو ہے وہ 2 ہفتے بعد اس قیمت کے اندر کمی تو آئی ہے، مگر تاحال سرکاری ریٹ لسٹ اور اوپن مارکیٹ کے اندر فرق برقرار ہے۔ اگر ہم بات کریں آج کے روز تو اس کی سرکاری طور پر قیمت رکھی گئی 185 روپے فی کلو، مگر شہریوں کو یہ اوپن مارکیٹ کے اندر 250 سے 300 روپے تک کے اندر فروخت ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کے اندر اس کی قلت بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے شہری اس کو لے کے جانے سے قاصر ہیں اور خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ تاحال قیمتوں کے اندر کمی تو آئی ہے، مگر ابھی تک اس کی جو قیمت ہے وہ شہری اگر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو انہیں یہ لال ٹماٹر لینے کے لیے ابھی بھی 3 لال نوٹ جو ہیں وہ 100 روپے کے خرچنے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ارباز، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ برائلر مرغی کا گوشت 14 روپے فی کلو سستا ہو چکا ہے۔ برائلر مرغی کا پرچون ریٹ 439 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے، سعید احمد سعید سے بتائیے گا۔ برائلر مرغی گوشت کی قیمت میں آج مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے 14 روپے فی کلو کمی ہے وہ کی گئی ہے، اور 14 روپے فی کلو کمی کے بعد جو سرکاری نقنامہ ہے برائلر مرغی گوشت کی قیمت کا وہ 439 روپے فی کلو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن شہر لاہور کے اندر گراں فروشی سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، اور لاہور کے متعدد مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر جو مرغی کا گوشت ہے وہ اس قیمت کے اوپر فروخت ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر بات کر لیں گوشت کی قیمت کی فروخت کے حوالے سے تو 480 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت ہے وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ صافی گوشت جو ہے وہ 520 روپے سے لے کے 560 روپے فی کلو تک مختلف علاقوں میں مختلف دکانوں کی طرف سے فروخت ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کریں آج کے ریٹ کے حوالے سے تو فارم ریٹ تھا برائلر کا زندہ وہ 275 روپے فی کلو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جبکہ ہول سیل ریٹ ہے وہ 299 روپے، جبکہ پرچون ریٹ زندہ تھا مرغی کا وہ 303 روپے فی کلو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ اگر بات کر لیں فارمی انڈوں کی تو فارمی انڈے بھی ہیں وہ آج 2 روپے فی درجن ہے وہ مزید مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ اور بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ کا۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ کیا ترمیم کی گئی ہے، کلیم اختر سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے ٹیکس میں مزید شفافیت لانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے آن سروسز 2012 اس میں جو ترمیم ہیں وہ بھی متعارف کروا دی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ترمیم متعارف کروائی گئی ہیں اس سے قبل جو سروسز تھی اس کے اوپر جو ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا اس میں کافی زیادہ جو سروسز تھی وہ متنازع تھی، جو کہ اب جو ترمیم متعارف کروائی گئی ہیں ان ترمیم کی مدد سے جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے اس میں اب جو کلیئرٹی ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ترمیم متعارف کروائی گئی ہیں اس میں جو مخصوص ٹرانسپورٹ سروسز ہیں اسے ٹیکس سے استثناء قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل جو ٹرانسپورٹ پیسنجر ٹرانسپورٹ سروسز تھی اس میں عمومی طور پر ٹیکس لاگو نہیں تھا۔ جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری شیڈول کے پارٹ 3 کے متعلقہ 3 مختلف سیریز نمبر میں درج ڈیٹا ہے جو سروسز تھیں اسے بھی استثناء قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ ترمیم کے بعد باقی تمام جو ٹرانسپورٹ کے اوپر خدمات ہیں اس پر سیلز ٹیکس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جبکہ اسی کے علاوہ جو پہلے شیڈول کے نمبر 4 پر پرانی بلڈنگ تھی، جو عمارات تھیں، ان کی جگہ پر جو نئی تعریف ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے بھی کچھ سروسز کے اوپر
पर जो टैक्स था वो तनाज़ा था उसको भी अब जो है वाज़े कर दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, और ये कहा गया है कि अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। नवाब टाउन पुलिस की डाला कल्चर असलहे की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाई। 24 घंटे में दूसरी कार्रवाई। वीगो डाले पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार भी किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में सदाम हुसैन, उमर सैयद, मिसल बादशाह और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। मुलजिमान की कब्जे से 3 जदीद ऑटोमेटिक राइफल्स और मैगजीन्स और गोलियां भी बरामद की गई हैं। शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार हो गया। मुलजिमान मासूम शहरियों की दुकानों में घुसकर वारदात करते थे। शफीकाबाद पुलिस ने मुलजिमान को वारदात के 12 घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और 1,50,000 नकदी और साथ ही साथ असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में उस्मान, उसामा, अब्दुल्ला और साथी सिकंदर शामिल हैं। जाबर काउंसिल इंतखाबात में सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान की हिदायत पर भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। हाईकोर्ट और ज़रिए अदालतों की तरफ से गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सिस हटा दिए गए। इंतखाबी मुहिम सिर्फ वकला से राब्तों तक महदूद रखने की सख्त हिदायत की गई हैं। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी ही शफाफ इंतखाबात की ज़मानत है, ये कहा गया है। पंजाब काउंसिल के सालाना इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 61 अरब के इजाफी फंड्स की तलब। जारी मनसूबों पर 81 अरब से ज़ायद अखराजात हो चुके हैं। महकमे मवासलात और तामीरात ने फंड्स की कमी को तरक्याती रफ्तार में रुकावट करार दे दिया। रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 61 अरब का इजाफी फंड तलब कर लिया गया। जारी मंसूबों पर 81 अरब से ज्यादा अखराजात हो चुके। महकमा मवासलात और तमीरात के मुताबिक वज़ीर आला पैकेज 2025-26 के तहत जारी मंसूबों पर अब तक 81 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात हो चुके। ताहम फंड्स की कमी तरक्याती रफ्तार में रुकावट बन गई है। सूबे में सड़कों की तामीर और बहाली के मंसूबों की लागत 219 अरब है। हुकूमत ने 47 अरब 81 करोड़ रुपए के फंड जारी किए। सिर्फ 10 अरब 73 करोड़ रुपए खर्च हो सके। महकमा मवासलात ने इजाफी फंड्स के अजरा के लिए ऐवान वज़ीर आला से रजू कर लिया। सिफारिश की है कि इजाफी फंडिंग से जारी मंसूबों को रवा माली साल के अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। दूसरी जानिब स्कूलों में इजाफी कमरों के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 800 स्कूलों में 1600 कमरे बनाने के लिए फी स्कूल 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में 2-2 इजाफी कमरे बनाए जाएंगे। 25 लाख रुपए का फंड स्कूल काउंसिल की मंजूरी से कमरों की तामीर पर खर्च किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में 20,000 तलबा को मौके पर ही इलाज किया गया। खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खसूसी कोर्सेज़ का इजरा। डिज़ाइन एंड यूट्यूब, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स के कोर्सेज भी जारी है। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी दी गई। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 8 मौजूदा लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला भी हुआ है। CM खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनर्स और 1760 तलबा की ट्रेनिंग भी की है। पहली 50 पोजीशंस हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करें कि डोर भिड़ने से नौजवान की हलाकत। मुआविन खसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक और राशिद नसरुल्लाह की नौजवान की रिहाइश का आमद हुई है। राशिद इकबाल नसरुल्लाह और ज़ीशान मलिक ने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। राशिद इकबाल नसरुल्लाह ज़ीशान मलिक ने पार्टी क़यादत की जानिब से भी ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से 20 लाख मालियत का चेक लवाहिकीन के हवाले किया गया। मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक, राशिद इकबाल के अहल खाना को मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई गई है। लाहौर में साबिक शौहर की जानिब से खातून से ज्यादती का वाक़या। हिना परवेज भट्ट का मुतासर खातून के घर का दौरा, अहल खाना से मुलाकात की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम नकाश मकसूद को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बच्चे साबिक शौहर से लेकर मुझे दिए जाएं, मुतासर खातून की जानिब से ये अपील की गई है। हिना परवेज भट्ट की पुलिस को बच्चे माँ के हवाले करने की हिदायत भी की गई है। ऐसे दरिंदा सिफ्त अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। हिना परवेज भट्ट की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ख़वातीन पर जुल्म और ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे भर में बेहंगम अर्बन डेवलपमेंट
मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद कर दी गई। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी ज़िलाई मास्टर प्लानर्स के मुताबिक ही की जाएगी। मास्टर प्लान्स के बरखलाफ सोसाइटी की दरख्वास्त पर भी वसूल नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ये फैसला किया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के डायरेक्टर जनरल्स DG भाटा, CEO रूडा को हुक्मनामा जारी हुआ है। सोसाइटीज़ की मंजूरी से कबल मतलूबा एहतियाती जांच पड़ताल इदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मास्टर प्लान की खिलाफवर्जी के बायस ग्रीन एरियाज तबाह होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट कमिश्नर मरियम खान के इम्तहानी मराकज़ के दौरे किए गए। DC मूसा रसा भी हमरा मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर इम्तहानी मराकज़ का दौरा। कमिश्नर ने इम्तहानी मराकज़ के गिर्द इम्तहानी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इंतजाम का जायजा लिया है। MD कैट इम्तहानी मराकज़ की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज है। कमिश्नर मरियम खान के मुताबिक ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इम्तहानी मराकज़ में गैर मुतल्लका अशख़ास का दाखिला सख्ती से बंद है। इम्तहानी मराकज़ के गिर्द SOPs के मुताबिक इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर मरियम खान का फरखाबाग, खजूरावाला बाग, बेगम कोट का दौरा किया गया। DC मूसा रसा, CEO LWMC और दीगर अफसरान हमरा मौजूद थे। कमिश्नर ने शाहदरा में सफाई वर्किंग, नालों की गिर्द सफाई और दीगर साइट्स का भी जायजा लिया है। कमिश्नर मरियम खान की सफाई निज़ाम को मौसर बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। कमिश्नर ने अंदरून शाहदरा में जानवरों के इनखला के ऑपरेशन की हिदायत भी की है। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रसा की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की शिरकत थी। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मान, नेस्पाक और वासा हुकाम की इजलास में शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर नेस्पाक और वासा ने प्रोग्राम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी है। तरक्याती मनसूबों में मायार, शफाफियत और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। ब्रीफिंग में ऐसा कहा गया है। जदीद ड्रोन मुलज़िमान का ताक़ुब करेंगे। डॉकिंग ड्रोन से फौरी मुलज़िमान का ताक़ुब किया जाएगा। ड्रोन 10 बड़े थानों की हदूद में उड़ेंगे। जदीद तरीन डॉकिंग ड्रोन की कीमत 22 से 25 लाख रुपए है। इब्तदाई तौर पर 10 ड्रोन्स की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में वारदात करने वाले बच नहीं सकेंगे। जदीद ड्रोन मुलज़िमान का ताक़ुब करेंगे। वारदात की 15 पर कॉल मौसूल होते ही ड्रोन खुदकार निज़ाम के तहत हरकत में आ जाएंगे। जदीद तरीन ड्रोन शहर के 10 बड़े थानों की हदूद में बुलंदो बाला इमारत पर नस्ब होंगे। जदीद तरीन टॉकिंग ड्रोन की कीमत 22 से 25 लाख रुपए है। इब्तदाई तौर पर 10 ड्रोन की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। बैरून मुल्क से डॉकिंग ड्रोन की खरीदारी के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। पहली खेप मौसूल होने के बाद मजीद 10 ड्रोन मंगवाए जाएंगे। लाहौर के बाद मरहलावार पंजाब भर के लिए डिमांड और एरिया के मुताबिक ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। ड्रोन्स के वर्क स्टेशन भी इमारत पर होंगे जो ऑटोमेटिकली कमांड मिलते ही फिजा में होंगे। डॉकिंग ड्रोन शहर में 15 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग कर सकेगा। वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वुमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला हुआ है। मोहम्मद वसीम को 2024 में कौमी वुमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। हेड कोच मोहम्मद वसीम को कोचिंग से हटाने की वजूहात सामने आ गई है। मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तान वुमेन टीम मुसलसल जवाल पजीर हुई है। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे हैं। दावों के बरक्स टीम वुमेन वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी। हेड कोच के बावजूद खिलाड़ियों की कोचिंग न करने की शिकायत भी आई है। मोहम्मद वसीम खुद बैट्समैन थे लेकिन वुमेन टीम की बैटिंग कमज़ोर तरीन हो गई। मोहम्मद वसीम का रवैया उखड़ा मिजाज रहा। बॉलिंग और बैटिंग कोचेस से भी नहीं बनती है। वसीम हेड कोच होने के साथ टीम की सिलेक्शन में भी शामिल रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ की तकर्रियाँ वसीम की मर्जी से हुई मगर नताइज सिफर रहे। कौमी वुमेन टीम बॉलिंग के शोबे में भी मुसलसल तनाजुली का शिकार है। टीम की फील्डिंग भी बेहतर नहीं हुई है। वर्ल्ड कप में ढेरों कैचेस ड्रॉप हुए हैं। मोहम्मद वसीम की जगह नए हेड कोच की तैनाती अगले हफ्ते होने का इम्कान है। पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर 10 दो रोज़ा मैच में पाक लायंस गार्डन टाउन, पाक लायंस जुबली टाउन की टीमें मद्दे मुकाबिल है। मज़ीद जान लेंगे हाफिज शहबाज से, बताएगा।
इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क लाइन्स इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड गॉर्डन टाउन पर। यहाँ पर आज पार्क लाइन्स अकेडमी प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में अंडर 10 बच्चों का 2 रोज़ा मैच खेला जा रहा है, जिसमें पार्क लाइन्स जुबली और पार्क लाइन्स गार्डन टाउन की टीमें आमने सामने। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो पार्क लाइन्स गार्डन टाउन ने पहले खेलते हुए अपनी पहली इनिंग्स में 301 रन बनाए थे और इस वक्त तक पार्क लाइन्स जुबली टाउन जो है उनके 50 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है इमरान अली। उनसे जानते हैं कितना अहम होता है इतने छोटी उम्र में इतने 2 रोज़ा मैचेस बच्चों के करवाना। अस्सलाम वालेकुम इमरान, हम देखते हैं एक दौर में पाकिस्तान में बैटिंग का बड़ा टैलेंट होता था, अब T20 क्रिकेट T10 क्रिकेट से बच्चों में टेम्परामेंट नहीं है, तो ये जो T10 मैच है बच्चों का कितना इंपॉर्टेंट है 2 रोज़ा मैच अंडर 10 बच्चों का? आज जो हमारी क्रिकेट है वो सिर्फ T20 तक महदूद रह गई है, तो इस एज में अंडर 10 में 2 रोज़ा क्रिकेट इससे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये जो बच्चे हमारे जो जैसे हमारी टेस्ट क्रिकेट में भी चीज़ें पीछे चली गई हैं, इनसे हमारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे आम हर अकेडमी में चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए कि इस क्रिकेट में इस लेवल क्रिकेट में मतलब हमने जितने प्लेयर आज तक गुजरे हैं, बड़े प्लेयर बने हैं, वो सारे इस बेसिक क्रिकेट से बने हैं, ठीक है। तो और मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुना आपने इमरान अली जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, साबिक का कहना था कि जब तक ये इस ग्रास रूट लेवल के ऊपर 2 रोज़ा क्रिकेट या 3 रोज़ा क्रिकेट के मैचेस नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा जो बैटिंग के मसाइल हैं वो हल होना मुश्किल है। और ये मैचेस में बड़े अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये बच्चे यहीं से इनका टेम्परामेंट भी बनेगा और ये आगे जाके डेवलप भी होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ शहबाज आपका।